First, the price at which the underlying asset is traded in cash market is known as spot price. First answer. The price at which future contract for an underlying asset trades in derivative market is known as future price. Third answer. Third, the period over which future contract is traded is known as dash. Period बोला है, period over which future contract. Answer is contract cycle. Second, number of units of underlying asset traded in a single future contract is known as dash size. Number of units in one stock future is called as, it can be contract size, it can be lot size, contract or lot size. Third answer is right. It is also known as contract and lot size. That means minimum quantity for buying the stock future. One lot is of 250 shares, 300 shares. Number 5. The amount to be deposited while entering into a future contract is known as dash. While entering into a future contract is known as dash. Answer is first, initial margin. Number 6. The concept of dash is used to prevent any fraud or error in contract price in derivative contract. Price band. There is a price band, upper price band and lower price band to prevent error in contract price. Number 7. Low open interest. Low open interest indicates dash. Liquidity for futures of underlying asset. Number 7 is low liquidity. When there is no liquidity, low liquidity, that is low open interest. Higher expected dividend yield will lead to dash basis. Lower basis. A situation where the underlying asset in cash market and future market is not same but similar to each other is known as dash hedge. It is known as cross hedge. किसी का स्टॉक फ्यूचर्स में लिस्टेड नहीं है, आपका कैश में उसी स्टॉक में पोजीशन है और आपको उसी स्टॉक में फ्यूचर्स नहीं है अवेलेबल, तो आप उसके आसपास की कोई भी उसका इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज दूसरी स्टॉक्स है उसको आप ले रहे हो तो उसको क्रॉस हेज बोलेंगे. कंपनी इज नॉट सेम. Okay, for hedging, you are not buying LNT with LNT. You may be buying something else. Futures में आपने किसी और स्टॉक में hedging किया, उसको हम लोग क्रॉस हेज बोलेंगे. Future contracts have dash payoff. Symmetrical payoff. Future contracts have dash risk. Limited, unlimited. Number 11. Answer is unlimited risk. Both the parties have unlimited risk. They both have obligation to complete the contract. When the price of underlying asset moves up, the long future position starts making dash. You have bought future. Long future means you have bought future, and when the asset price goes up, answer is 12th. Second, profits.
Number 13, dash technique used to limit the risk from a short spot position. Number 13 is long hedge. Long hedge technique used to limit the risk from a short spot position. Hedging with stock futures means dash लॉन्ग सिक्योरिटी शॉर्ट सिक्योरिटी कैश मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट उसी को स्टॉक फ्यूचर्स बोला जाता है हेजिंग विद स्टॉक फ्यूचर्स रॉन्ग फर्स्ट इज रॉन्ग सेकंड लॉन्ग सिक्योरिटी शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स 14 सही लग रहा है सेकंड सही लग रहा है इसमें 14 का थर्ड लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर सेम फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट किया है रॉन्ग है ये थर्ड रॉन्ग है नंबर 4 लॉन्ग सिक्योरिटी एंड लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर दोनों में लॉन्ग किया है एक में लॉन्ग दूसरे में शॉर्ट चाहिए उसी को हेजिंग बोलते हैं ये बराबर है सेकंड लॉन्ग सिक्योरिटी शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स आंसर इज सेकंड difference in dash in cash and future market may lead to an imperfect hedge. Difference in dash in cash and future market. Underlying asset, contract size, trading cycle. Answer is any one or all of the above. All of the above is right. Answer is fourth. Number 16. A dash hedge can be achieved A dash hedge can be achieved when the asset in spot market and underlying asset in future market is same. 16 number answer is imperfect. (17) A bullish speculator believes the security price to be in dash. Bullish speculator को क्या लग रहा है? Normal backwardation. He believes the security price to be in a normal backwardation. That means the spot price should be greater than the spot price is lower and future price is greater. Dash is referred to as a technique of making risk less profit by taking advantage of price difference of an asset in two different markets. Risk less profit कमाना है अगर और प्राइस डिफरेंस देखना है दोनों मार्केट में बीएससी और एनएससी पे दो अलग प्राइसेस है इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज ओके कैश एंड कैरी arbitrage is used when spot rate plus cost of carry is dash as compared to future price of underlying asset. Cost of carry is lower as compared to future price of underlying asset. Spot rate or cost of carry is lower than the future price of the underlying asset is called as cash and carry arbitrage. Lower आना चाहिए आंसर. True or false? Future contracts are mark to market.
ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट आंसर बताइए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मार्क टू मार्केट। क्या होता है मार्क टू मार्केट? डेली सेटलमेंट। मार्क टू मार्केट मीन्स हमारे अकाउंट में डेली चेंजेस देखने को मिलेगा। मार्जिन हमारा कलेक्ट होगा, हम लोग मार्जिन सबमिट करेंगे और वो मार्जिन में डेबिट और क्रेडिट होते रहेगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी। अगर मैंने बाय किया है, प्राइस बढ़ रही है, तो वो प्रॉफिट आ जाएगा मेरे अकाउंट में। तो जो भी फ्लक्चुएशंस है वो अकाउंट में एडजस्टमेंट होती है। मार्क टू मार्केट का मतलब जो भी करंट प्राइस स्टार्टिंग में हमने जो रेट पे बाय किया है उस रेट से अगर ज्यादा बढ़ गया है और आपने बाय किया है तो आपके अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा अमाउंट। जितना भी प्राइस चेंज हुआ है उसके वजह से आपको प्रॉफिट होगा एंड दैट प्रॉफिट विल बी एडेड टू योर अकाउंट। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो एम टू एम में क्या होगा? लॉस। You will see that M2M is negative because of fall in price. आपका मार्जिन मनी में वो एडजस्ट हो जाएगा। Number 2, futures are delivery settled at BSE. Futures are delivery settled at BSE. False. Answer is false. BSE पे इसका डिलीवरी नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाई ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट्स हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या है? हाई ओपन इंटरेस्ट मीन्स इट इज हाईली लिक्विड। बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो हायर वॉल्यूम होगा। बायर सेलर जब ज्यादा होते हैं तो उसी को हाई ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। आंसर इज ट्रू, राइट। Number 4, time value of money. Time value of money is used in valuing futures. Time value of money is used in valuing futures. हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट लेते हैं, ओके, 1 + r इंटू m/12। याद है हम लोग इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करते हैं जब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। कैश प्राइस में इंटरेस्ट को ऐड करके you will get future value. Answer is true. Number 5, while valuing futures, lower expected dividend leads to higher basis. Number 5 is true. ये ब्लैंक्स में भी हमने किया था, यहाँ पे हायर था और यहाँ पे लोअर बेसिस था। बेसिस क्या होता है? बेसिस का मतलब स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस, दोनों का डिफरेंस। बेसिस का मतलब स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस। ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर डिविडेंड लोअर है तो। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा जब डिविडेंड एक्सपेक्टेड इज लोअर। व्हेन हायर एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा तो यहाँ पे लोअर बेसिस आएगा। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, spot price of security will be higher than its future price. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उल्टा बोल रहा है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्पॉट प्राइस कम होती है, इट इज ऑलवेज लोअर and future price is greater. So this is false. Number 6 is false. Number 7, in futures, normally with passage of time, basis of a security reduces.
विद द पैसेज ऑफ टाइम, बेसिस का मतलब डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर। नंबर 7 इज करेक्ट। फ्यूचर्स में क्या होता है, जैसे ही एक्सपायरी डेट आती है उस दिन फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों सिमिलर हो जाती है। ओके, मतलब बेसिस रेड्यूस हो जाएगा, स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस 0 हो जाता है। बेसिस की फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। बेसिस रेड्यूस हो जाता है, 0 हो जाता है जिस दिन एक्सपायरी आती है, उस दिन स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस 0 हो जाता है। आंसर इज ट्रू। रोल नंबर 25 ने राइट आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट, क्रॉस हेज will never lead to basis risk. Number 8 is false. हेजिंग तभी होता है जब बेसिस होता है, उसमें डिफरेंस होता है। स्पॉट और फ्यूचर में थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो ही हम लोग का बेसिस का रिस्क रहता है, ठीक है, क्रॉस हेज में। So 8 is false. Number 9, future price and expected spot price in future is one and the same thing. Number 9, फ्यूचर प्राइस एंड एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस, एक महीने के बाद का फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस इन फ्यूचर इज वन एंड द सेम थिंग। फर्क है ना, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्पॉट प्राइस है, ये कैश मार्केट है, ये फ्यूचर मार्केट है। तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। नंबर 10, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर जीरो सम गेम। डेरिवेटिव्स में जितने भी होते हैं ना, एक के पॉकेट से पैसे निकलते हैं, लॉस होता है एक को और दूसरे को उतना ही प्रॉफिट होता है। जीरो सम गेम, आंसर इज राइट। A person buying a future contract, a person buying a future contract is said to hold a short position. A person buying a future contract is said to hold a short position. Buy बोल रहा है और बोल रहा है short. Buy मतलब long position होता है, wrong है ये, false. 11th false. Number 12, long future payoff are directly related to prices of underlying asset. लॉन्ग फ्यूचर पे ऑफ जो होता है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। नंबर 12 इज ट्रू। नंबर 13, एज प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग एसेट फॉल्स, शॉर्ट फ्यूचर्स स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स। जैसे प्राइस गिरेगा उसके वजह से शॉर्ट फ्यूचर्स में प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट है। रोल नंबर 25, वेरी गुड। Next, long future payoff are directly related to underlying asset price. Long future payoff are directly related to underlying asset price. डायरेक्ट रिलेशन होता है जब असेट का और लॉन्ग फ्यूचर्स का दोनों, अगर असेट प्राइस बढ़ेगा तो लॉन्ग फ्यूचर्स का पे ऑफ भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके, ये सेम क्वेश्चन हुआ, ये भी सेम है, ये भी सेम है। 12 और 14 सेम है, 14 is true. Number 15, an arbitrator takes same position in future market and spot market. अलग अलग पोजीशन लेनी है, एक में लॉन्ग लेनी है, दूसरे में शॉर्ट लेनी है।
लॉन्ग कहाँ पे लेनी है? जहां पे प्राइस कम है वहां पे लॉन्ग, और जहां पे कम है वहां पे लॉन्ग लेनी है, और जहां पे ज्यादा है प्राइस वहां पे सेल करनी है. Hedger is a player who assumes two opposite positions, one in spot market and other in future market. Number 16, true. हेजर क्या करता है? कैश मार्केट में अगर लॉन्ग पोजीशन है, उसमें उसको लग रहा है कि डर लग रहा है कि प्राइस सेल करने के वक्त नुकसान होगा, तो वो वहां पे सेकंड पोजीशन क्या लेता है? शॉर्ट. शॉर्ट इन फ्यूचर्स. 17, speculation in future markets involves higher risk as compared to holding same position in spot market. Speculators, they take risk, and hedgers, they try to reduce the risk. A bearish speculator will enter into a long future contract. Number 18 is bearish speculator क्या करता है? लॉन्ग नहीं लेगा, वो शॉर्ट लेगा. बेयरिश हमेशा बेचता है. उसको लग रहा है मार्केट नीचे आएगा तो अभी बेच देता हूँ, हाई प्राइस पे बेच देता हूँ, जब नीचे आएगा मार्केट तो मैं खरीद लूंगा. अभी difference between future price and spot price is called as dash. बेसिस का मतलब क्या होता है? स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइज. कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब लॉट साइज. क्यूब. कॉन्ट्रैक्ट साइज इज अ लॉट साइज. नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स. ये एग्जाम में मैंने करवाया था, इंटरनल एग्जाम में. वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स, इसकी पूरी पीपीटी भेजी है आपको. इसका आंसर है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल. Number 4, amount payable at time of entering into future contract is called as dash. Initial margin. Number 5, asset on which derivative price is based. Underlying asset. Underlying का प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है फ्यूचर का प्राइस. Settlement of future contracts at NSE. Answer is NSE or BSE. Cash. Settlement of future contract at NSE in cash. यहाँ पे दिया है आई कैश. ठीक है. उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट एनएससी. कैश में ही सारे सेटल होते हैं. आपको पता है कि जो लोग बाय करते हैं वो लोग सेल करते हैं, कैश में करते हैं. कैश सेटलमेंट क्या होता है? जिसने लॉन्ग पोजीशन लिया है उसको शॉर्ट पोजीशन लेना है, स्क्वायर ऑफ करना है. ट्रेडिंग एक्सचेंज. ट्रेडिंग एक्सचेंज का आंसर क्या है? एनएससी और बीएससी. आंसर इज ए. 8th का ट्रेडिंग एक्सचेंजेस कौन से है? एनएससी और बीएससी. Number 9, time limit within which future contract has to be settled. टाइम लिमिट दिया जाता है.
टाइम लिमिट विद इन विच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी सेटल्ड, आपके राइट साइड में दिया हुआ है। एक्सपायरी के पहले पहले आपको कर देना है साइकिल, ट्रेडिंग साइकिल 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। low expected dividend yield, number 10. Low expected dividend yield is called as is having higher basis, R, higher basis. Partial convergence of future price and spot price on settlement date. अगर पार्शियल कन्वर्जेंस हो रहा है, पूरा कन्वर्जेंस नहीं हुआ, प्राइस बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है अभी भी, उसको बोलते हैं बेसिस रिस्क। आंसर इज ई, बेसिस रिस्क। जब हम लोग हेजिंग करते हैं तो मिसमैच होता है। ओके, बेसिस रिस्क ऑकर्स व्हेन अ हेज इज इम्परफेक्ट। जब आपका पूरा लॉस रिकवर नहीं होता है, फ्यूचर्स के प्रॉफिट से पूरा लॉस आपका रिकवर नहीं होता है। ओके, उसमें बेसिस रिस्क बोला जाता है उसको। लोग हेजिंग करने के लिए फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। कैश में अगर लॉन्ग है तो फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेके हेजिंग करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस में ज्यादा बेसिस की डिफरेंस ज्यादा सेम नहीं रहती है, या बेसिस रिस्क वहां पे देखी गई है, तो आप हेजिंग करने के वक्त आपका पूरा लॉस वहां से रिकवर नहीं होगा। ओके, जब एक्सपायरी के दिन फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम नहीं रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिस रिस्क। पार्शियल कन्वर्जेंस, दोनों सेम नहीं हो गए, फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस एक्सपायरी के दिन अगर सेम नहीं होते हैं तो उसकी वजह से बेसिस रिस्क आती है। मतलब जो हेजर्स चाहते थे कि हम लोग लॉस को रिकवर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस को यहाँ से रिकवर करें, वो लोग नहीं कर पाते। Next, future payoff is linear. Payoff for long futures directly proportional to spot price. Payoff for short futures number 3, inversely proportional to spot price. Hedging, number 4, used to limit the risk in spot market. Speculation, highly risky. Arbitrage, sixth answer is B, risk-free profits.